Welcome back, 12th standard. We'll go little slow today because we have lots of numericals to take up. Okay. The very first numerical, a simple numerical, which I've already done, and I'll be taking up a few concepts of equilibrium for you, which is very important for this chapter. We'll be taking up solubility curves in this topic. Okay, and we'll be going a little slow now. Okay, I'm taking up the very first numerical straight away instead of so through numericals we'll try to understand the mole concept which is being used in this topic in this chapter. Okay, right. Molarity and normality relation we have already given on the previous page. Okay, so molarity and normality they are associated with each other by n factor. N factor means in acids is equal to basicity, in bases it is equal to acidity, and it is equivalent to the total positive or negative charge, and then it is equal to the change in oxidation state. There can be multiple compounds formed of the same compound. Okay, right. So if it is that case, I have given with example of potassium permanganate and permanganates, where Mn is also formed, and salt of manganese is also formed, and salt of MnO2 is also formed, or MnO2 is formed, magnite. Okay. Welcome back to second topic, second discussion. Previously, it was just an overview of the chapters. Today, we are discussing solubility. And before we study solubility curve, okay, and other things, ये जो काम है ये बड़ा सिंपल सा काम है. ध्यान से समझने का काम है. समझने के बाद हर चीज़ सिंपल होती है. इस बात का ध्यान रखना है हमें. So this is Neeraj Sharma for Education and Parvarish, starting with Chemistry Part 2 of Solutions, Chapter 1. Okay, may God bless everybody. May God bless our effort. Take care. Take care of your studies. Give proper time. Sit down. Relax. Sit down and then focus on your work. One thing at a time. That is, play while you play and work while you work. Solubility is the total quantity or amount of solute dissolved per 100 gram of a solvent. Okay, 100 gram of a solution. ये इमेजिन करते हैं हम कि जो सोल्यूशन है उसमें वो उसके ऐड होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता. ये हम सपोज करके चलते हैं कि जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो उससे वॉल्यूम चेंज नहीं होता. ठीक है, यानी कि डेल्टा वी रिमेन्स जीरो. और ये कंडीशन भी है किसी आइडियल सॉल्यूशन की, जो कि अभी हम स्टडी करेंगे इसी टॉपिक के अंदर. लेकिन आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे और instead of focusing more on 11th standard, I'll be trying to revise 11th standard equilibrium and thermodynamics का कुछ पार्ट जो कि इसकी जरूरत पड़ेगी want of factor के numericals के अंदर, using examples only, numerical examples from that particular chapter. Okay, so सबसे पहला पार्ट तो ये है कि परसेंटेज क्या होती है. तो ये आपने पहले भी किया हुआ है, परसेंटेज क्या होती है. और इससे प्रीवियस चैप्टर में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आप यदि इनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं. ठीक है, ये जैसे पेज नंबर 4 है इसका, जिसमें इक्विवेलेंट वेट और मोल्स सब कुछ दे रखा है. इसके अंदर सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं एन फैक्टर निकालने के, जो कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन को डिफाइन करता है. जैसे एल फैक्टर निकालने के इसको मेथड दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस दे रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस दे रखा है ना, और इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड or element which combines with 8 grams oxygen by weight. Okay, right, and ये सारा दे रखा है इसके अंदर, जो आपने ध्यान से करना भी है. जैसे इसने एल्यूमिनियम दे रखा है ना. अब एल्यूमिनियम combines with oxygen and produces एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें एल्यूमिनियम A3+ है. यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. ठीक है, तो इसका जो एन, यदि हम टोटल के हिसाब से देखें तो एन फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 27. इसका वैसे वेट होता है. यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया
9. The equivalent weight is 9. Okay. Number of parts by mass of the elements that reacts with 1 gram of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen and 35.5 parts by mass of chlorine. ये उसका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है. निकालते कैसे हैं इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास अपॉन वैलेंसी. यदि किसी की इक्विवेलेंट वैलेंसी से डिवाइड करते हैं, एसिड्स हो तो बेसिस से डिवाइड करते हैं, बेसिस हो तो एसिड से डिवाइड करते हैं, और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. यदि ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इस केस में हम एन फैक्टर को यूज करते हैं. ठीक है. ये इस पार्ट को यदि आप स्टडी करेंगे, आई विल बी टेकिंग अप ईच एंड एवरी पार्ट बाय एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जो पेज नंबर 3 पे दे रखे हैं इसके, कि परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन बाय मास क्या क्या होता है. जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी है. अब इसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि नॉर्मेलिटी कहाँ यूज हो रही है और मोलैरिटी कहाँ यूज हो रही है. ठीक है, राइट. और दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, सिर्फ रट्टे नहीं मारना आपको. ठीक है. प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके. So let us start with this part of the topic, taking into consideration what is solubility and what are the factors affecting solubility. ये part हम अभी करेंगे. Let's go ahead with chapter number 1. Solubility is used everywhere in industry. Solubility हर जगह यूज होती है. Solubility इतनी important है कि मेडिसिन से लेके, लिक्विड्स बनाने से लेके, पेस्ट बनाने से लेके, सब कुछ में सॉल्युबिलिटी की इफेक्टिवनेस है, इसकी इंपॉर्टेंस है. चाहे फ्रीजिंग मिक्सचर बनाना हो, जैसे कोल्ड पैक्स बनाने, आप कोल्ड पैक्स यूज करते हो. ठीक है, राइट. जिसमें एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स होता है, अमोनियम नाइट्रेट. कहते हैं कि सॉलिबिलिटी जो कूलिंग है, डिसोल्यूशन कूलिंग कॉज करती है, क्योंकि यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट गेन करता है सराउंडिंग से तो ठंडा करेगा, और हीट लूज करता है तो खुद ठंडा हो जाएगा और खुद की हीट लूज कर देगा. ओके, राइट. केमिकल प्रोसेसिंग में काम आता है, एनवायरनमेंट साइंस में काम आता है, राइट. एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालना है, वाटर का क्वालिटी इंडेक्स निकालना है, पॉल्यूशन लेवल्स निकालने हैं, सब जगह सस्पेंशंस कितनी है ये निकालना है ना, राइट. तो लोडिंग करके हम सस्पेंशंस को कैसे सेपरेट करके सेडिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ये भी निकालना है. इन सभी में हम सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करनी है. अब डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है कि सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ. हमें पता है कि इस टेम्परेचर तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और यदि टेम्परेचर को हम मेंटेन करें, लोअर लेके आते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है. तो जब डिसोल्यूशन होता है तो सब्सटेंस जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है. यदि वो कलर्ड कैटायंस हैं तो कलर दे देगा, नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह, होमोजेनस मिक्सचर की तरह काम करेगा. लेकिन यदि हम कंडीशंस को बदल दें, हम कूलिंग शुरू कर दें, तो जितना भी उसमें एक्सेस सॉलिड होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 100 ग्राम में 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ओके, उसकी सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम है, लेकिन हमने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम कर दिया. 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाती है. मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 ग्राम अपॉन 100 ग्राम है, और लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 2.5 ग्राम पर 100 है. तो ये जो एक्सेस सॉलिड है 5 माइनस 2.5, ये जो 2.5 ग्राम सॉलिड है ये अलग हो जाएगा उसमें से. अब वो उसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है. यदि वो पहले क्रिस्टल फॉर्म में था तो क्रिस्टलाइज आउट, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वो क्रिस्टलाइज आउट होगा. ऐसा ही सेम हवा में होता है लोडिंग का, तो लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, क्योंकि वहां पे डिसोल्यूशन नहीं हुआ, मिक्सचर नहीं हुआ. डिसोल्यूशन एक जैसे फॉर एग्जांपल पानी
क्लाउड्स जैसे ही कोल्डर एयर से पास करते हैं, जो स्मॉलर ड्रॉप्स है, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से क्या हुआ, जो छोटे ड्रॉप से बड़े ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, इट फेल डाउन एज रेन। ये नेचुरल होता है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हुआ कि हमने दो लिक्विड्स को ऐड किया, जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड को ऐड किया, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया। वैसे ये क्लोराइड का टेस्ट भी है, क्लोराइड रेडिकल का टेस्ट है ये, अभी हम करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये आएगा कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन से एनाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। डबल सॉल्ट को सेपरेशन कैसे करते हैं हम उनमें से, पहले तो सिंगल सॉल्ट आएगा, कैटायन फिर आएगा, दो कैटायंस हैं, दो एनाइंस हैं, उसकी सेपरेशन कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब सिल्वर क्लोराइड बना, अब ये दो लिक्विड दोनों सोल्यूशन, दोनों एक्वा सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड क्रिएट हुआ, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, वो इनसॉल्युबल है, वो सेपरेट आउट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बन गया इसके। बहुत से प्रकार के, वो पीपीटी के जो कलर है वो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। जो कोई भी सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? पहली बात तो टेम्परेचर के ऊपर, पहली बात तो उसकी खुद की नेचर के ऊपर कि वो उसमें डिसॉल्व करता है या नहीं करता। यदि वो डिसॉल्व नहीं करता तो आप कैसे डिसॉल्व करोगे, ठीक है, राइट, होगा ही नहीं वो, क्योंकि उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं क्या है, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, तभी कहीं जाके मिक्सिंग होगी, अदरवाइज वो सेपरेशन रहेगा, पार्टिकल सेपरेट रहेंगे। यदि वो लाइटर है तो सस्पेंशन की फॉर्म में आ जाएंगे, लाइटर होंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएंगे, सस्पेंशन की फॉर्म में लटकते रहेंगे। ये होता भी है। हम जब पहले वाटर प्लांट्स आते थे तो उसमें हम फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, सॉरी, इसका ब्लीचिंग पाउडर का अपना काम है, वो क्लोरिनेट कर देता है पानी को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें दो क्लोराइड हैं, इसमें OCl भी है और Cl भी है, इसमें दो सॉल्ट्स हैं, OCl एंड Cl, ठीक है। ये दो सॉल्ट है, ये दो एनाइन, दो टाइप के एनाइंस हैं इसके, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। अब इस जैसे इसको पानी में डालते हैं, क्लोरीन रिलीज करता है, क्लोरीन क्या करता है, तो इंसेसेंट जो क्लोरीन क्या करता है, उसी टाइम वो पानी के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन रिलीज करता है और जर्म्स मर जाते हैं सारे, ओके। सस्पेंशन है वो। यदि हमने सस्पेंशन है तो सस्पेंशन को नीचे बिठाने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लोडिंग करते हैं। लोडिंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो सबसे सस्ता है वो फिटकरी है। कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या करती है बेसिकली, अब गैसेस में क्या होता है, देखिए आप, गैसेस में प्रेशर, जैसे सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर डोमिनेंट है, वैसे प्रेशर गैसेस में, प्रेशर क्या करता है, जैसे कार्बोनाइज्ड ड्रिंक है, हम क्या करते हैं, प्रेशर पे बॉटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जब प्रेशर पे बॉटल को क्लोज करते हैं तो अब बॉटल के बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन उसके जो अंदर है वो जो प्रेशर है वो हायर प्रेशर है। उस प्रेशर के ऊपर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द ड्रिंक, ठीक है ना, उसमें फ्लेवर भी है, सब कुछ है, कॉन्सेंट्रेट है, मीठा है, सब कुछ है, ओके। अब जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं, हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिजिंग आउट होती है, वो बेसिकली फिज आउट क्या होता है कि जितनी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो प्रेशर के घटते ही, जब बॉटल खुलती है तो प्रेशर घटता है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर घटेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है ड्रिंक के अंदर वो बाहर आ जाएगी, क्यों, उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, ओके। तो सॉल्वेंट का डिपेंड करता है, ओके, उस पर डिपेंड करती है। अब एक और रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व नहीं होंगे, आयनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी। वाटर को क्या बोलते हैं हम, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इस पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये डिसॉल्व कर लेता है किसको, एल्कोहल्स के साथ
ये मिक्सचर बना देता है। ओके, यूनिफॉर्म मिक्सचर। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी फील्ड्स के अंदर, सभी फील्ड्स के अंदर, सस्पेंशन को कैलकुलेट करने के अंदर भी और सभी के अंदर। अब हमने ब्लड में कोई दवाई डालनी है, ठीक है। अब हम ब्लड में सॉलिड तो नहीं डाल सकते, हम सॉलिड खा तो सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉलिड खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रिएक्ट करेंगे, डिसॉल्व करके ब्लड में मिक्स कर देंगे। ब्लड में मिक्स करने के लिए उसको डिसॉल्व, ब्लड के अंदर मिक्स होना जरूरी है, ब्लड के साथ ट्रेवल करना जरूरी है, जैसे खाना। तो हम कोई भी चीज नर्वस सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस, जितनी भी दवाइयां हम किसी बीमार आदमी को देते हैं, एक तो है मस्कुलर, हम तो मस्कुलर लगाते हैं इंजेक्शन, एक इंट्रावेनस लगाते हैं, मतलब वीनस के अंदर, वेन्स के अंदर लगाते हैं, इंट्रावेनस, VEIN। तो इंट्रावेनस जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो सीधा ब्लड के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं दवाई को, मेडिसिन को। अब इसमें सॉल्युबिलिटी उसकी के सस्पेंशन में कन्वर्ट ना हो जाए, ये सारा कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो किसी भी स्टेज पे हम रिस्क नहीं ले सकते कि कहीं वो एलियन पार्टिकल की तरह बिहेव करना ना कर दे। आपने देखा होगा लिखा होता है कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब साइड इफेक्ट के लिए हर इंडिविजुअल का अपनी बायोलॉजिकल नेचर है, ठीक है, राइट। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं हम, अभी इसी चैप्टर का पार्ट है फ्रीजिंग मिक्सचर। ओके, एजियोट्रोप्स एंड एजियोट्रोप्स बोलते हैं उनको। ओके, राइट। एजियोट्रोपी क्या, अभी आप इसी चैप्टर में डिस्कस करोगे आगे जाके कि हम कुल्फी जमाते हैं जैसे मान लीजिए, है ना, राइट। फ्रीजिंग मिक्सचर्स, हम फ्रीजिंग मिक्सचर्स बनाते हैं। अब देखा होगा आपने, जो कुल्फी जमाते हैं वो फ्रीजिंग मिक्सचर किससे बनाते हैं? सॉल्ट से। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट वाटर को फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले जाता है, मतलब -15 पे भी फ्रीजिंग को डिले कर देता है। फ्रीजिंग को डिले करने से क्या होगा? सॉल्ट, और क्यों करेगा, बड़ा छोटी सी बात है, देखिए सोल्यूट पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में है। ओके, राइट। जब सोल्यूट पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में है, ओके, और फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग क्या है? जैसे मान लीजिए वाटर, हम कहते हैं वाटर फ्रीजेस, तो वाटर जो फ्रीज करता है, वाटर के अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डेंसिटी इसकी घटती है, उसके बाद स्लाइटली एक्सपैंड करता है, ये स्लाइटली एक्सपैंड करता है, इसका एनोमलस एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एनोमलस एक्सपेंशन, 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में। उसके बाद फिर ये इसका वॉल्यूम घटता है। तो जो वाटर जब फ्रीज करेगा तो क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे और सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, आपने किया हुआ है हाइड्रोजन आइस का स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। एक्चुअली अभी मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा लेट अस गो डीपर इनटू इट, लेट अस टेक द फील ऑफ द चैप्टर। फील लेनी जरूरी है इस चैप्टर की, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होने से सब्जेक्ट के डेप्थ को भूल जाते हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खड़गपुर के डायरेक्टर का अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है कि जो बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, बच्चों के इनिशिएटिव को खत्म कर देता है, क्योंकि वो हर चीज़ के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, नए क्वेश्चन देना उनके शायद बस की बात हो ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बहुत ही एक्सपर्ट टीम किसी भी पेपर को बनाती है। अभी मैंने अभी जब 10th और 12th के पेपर चल रहे थे कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, या एनसीईआरटी से नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी जो पेपर बनाती है वो ध्यान में रखती है कि कम से कम 50% पेपर जो है वो विद इन द रेंज होना चाहिए। ओके, और सभी को मार्क्स नहीं बांटे जा सकते, सभी को मार्क्स बांटना बहुत मुश्किल है। ओके, राइट। तो वाटर की फ्रीजिंग डिले होती है तो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है। इस प्रोसेस की को भी आप सॉल्युबिलिटी के चैप्टर में डिस्कस करोगे। ओके, राइट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट? इम्प्योरिटीज क्या करते हैं? नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देती है, बॉइलिंग पॉइंट को हायर कर देती है। मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, मान लीजिए वाटर ही है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करेगा ही नहीं, और वाटर जो बॉइलिंग है उसकी बॉइलिंग डिले हो जाएगी। तो इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? फ्रीजिंग को भी डिले करती हैं, बॉइलिंग को भी डिले करती हैं, मतलब बॉइलिंग लेट होती है
ठीक है, और फ्रीजिंग भी लेट होती है, फ्रीजिंग का टेम्परेचर भी लोअर टेम्परेचर भी फिर आप सो मच सो यदि आप कैल्शियम के सॉल्ट यूज करें तो आप फ्रीजिंग मिक्सचर के टेम्परेचर को -50 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हो, -50। विल बी डिस्कसिंग इट, ये डिटेल में आएगा, इसी चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ ही आएगा, ठीक है, राइट। इस सारी चीजों करना जरूरी है। जितने भी टाइप के मिक्सचर्स हैं, मैं एक बार फिर उसी पेज के ऊपर वापस जाना चाहूंगा जो हमने पहले किया था। ये जो चीज शो करती है कि हमारे जो ग्राफ है ये हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इक्वेशंस हैं इन सारे ग्राफ्स की, इसमें सॉलिबिलिटी टेम्परेचर कर्व है, ये हर चीज के अंदर क्यों क्यों जानना जरूरी है। सोडियम नाइट्रेट का सॉलिबिलिटी क्यों बढ़ी टेम्परेचर के साथ भाई, है ना, राइट। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो कि जबकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी सॉलिबिलिटी क्यों नहीं बढ़ती? क्या इसमें कहीं डिसोसिएशन इनटू आयंस का रोल है? ये समझना जरूरी है, ओके, राइट। अब सीजियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी क्यों घटी? ये घटी क्यों, टेम्परेचर से क्यों घटी? ओके, इसका भी आंसर निकालना जरूरी है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 32.48 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है, स्टीप राइज आता है सॉलिबिलिटी के अंदर। सॉलिबिलिटी बढ़ती है का मतलब क्या हुआ, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ठीक है, राइट। और जब ठंडा करेंगे उसको तो जितना भी एक्सेस सॉल्यूट है, यदि वो पाउडर फॉर्म से डिसॉल्व हुआ था तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यदि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में था तो वो स्लोली, लेकिन इट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस। यदि सडन कूलिंग करोगे तो अलग केस आएगा और स्लो कूलिंग करोगे तो अलग केस आएगा, ठीक है। लीचिंग, एनिलिंग, ये सब प्रोसेसेस आपने मेटलर्जी में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि हम क्या चाहते हैं, फ्लेक्सिबल चाहते हैं स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्टील किससे बनता है, अलॉय है कार्बन के साथ, ठीक है, और मेटल्स भी मिलाते हैं इसके अंदर, कार्बन के अंदर, अक्सर आयरन के अंदर। तो हम क्या चाहते क्या है हम उसके साथ, है ना, राइट, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि पोटेशियम का ही सॉल्ट है, ओके, यही रीजन आपको कंपटीशन के पास लेके जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से, आप सुने ध्यान से। एक्चुअली कंपटीशन आपका है, कंपटीशन में आपको यदि कोई सॉल्यूशंस सिर्फ पिछले एग्जाम्स के आंसर रट्टे मार के जाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग एनसीईआरटी से कतराते हैं। एनसीईआरटी ओवरव्यू करके बाकी सारा काम टीचर के ऊपर छोड़ती है, टीचर को रेफरेंस करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो डेकाहाइड्रेट के बाद ये पेंटाहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, 3 स्टेज आती हैं इसमें। अब पेंटाहाइड्रेट में जब कन्वर्ट होता है इसकी सॉलिबिलिटी घट जाती है। क्यों होता है ये काम, पेंटाहाइड्रेट बनने के बाद सॉलिबिलिटी क्यों घटती है, इसका भी आंसर देंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ती है, कुछ की घटती है। इसी चैप्टर में हम करेंगे, कहीं ना किसी स्टेज में हम करेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, वो भी हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। जो चीजें हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से, मैं इसको कंपटीशन कहता ही नहीं, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पार्ट है, उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। अब इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके शुरू में 50 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉलिबिलिटी कम रेट में बढ़ती है, स्लोप तो आप समझते हैं, बाद में ज्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्या इसका आयनाइजेशन का या डिसोसिएशन इनटू आयंस का कोई रोल है? क्या आयंस की अवेलेबिलिटी सॉलिबिलिटी को बढ़ा देती है, राइट? क्या डाइल्यूशन का रोल है? डाइल्यूशन का मतलब हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी। सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है? डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। और ये डाइल्यूट है तो इसका मतलब सॉल्वेंट इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगी, सॉल्वेंट को घटाएंगे तो डाइल्यूशन घटेगी। ओके, इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी। लिक्विड सॉल्यूशन, आपके सिलेबस में सॉलिड लिक्विड है, गैस इन लिक्विड है, ठीक है, राइट। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन पहले भी बताया था आपको, मैं फिर बता देता हूं। अब इसमें वॉलेटिलिटी आएगा वर्ड बाद में, वॉलेटाइल। एक वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो लो टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना,
तो वो क्या होगा, यदि आप उसको एक्सपोज कर दोगे तो वो लो टेम्परेचर सॉरी ज्यादा हाई टेम्परेचर की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वेपराइज हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अब वोलेटाइल लिक्विड है। अब मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक लिक्विड है, इसमें एक सोल्यूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ओके, पहली बात तो इसका खुद का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी इसके अंदर किया था लेकिन एक बार फिर कर देता हूँ इसको। हम यहाँ पे एक मैनोमीटर अटैच कर देते हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल है, आजकल ये सारे ट्रेडिशनल मेथड खत्म है, सब कुछ डिजिटल प्रेशर से मेजर करते हैं। आप जाते हो हवा भरवाने, आप हवा भरवाने जाते हो तो वो एक मीटर यूज करता है। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मीटर? उस मीटर का क्या नाम है और कैसे मेजर करता है वो प्रेशर, है ना, राइट। ठीक है, क्या उसका स्प्रिंग लगा हुआ है या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है वो? ठीक है ना भाई, हम वी आर गेटिंग एजुकेटेड, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप क्लास में अटेंटिव हैं, क्लास में अटेंटिव हैं और क्लास के बाद यदि आपने रेफरेंस किया है तो फिजिक्स विल बिकम द मोस्ट इजी सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। हमने इस कंटेनर को क्लोज किया, यहां से हमने यहाँ पे हॉट बाथ रख दिया, हॉट बाथ, मैं समझाऊंगा आपको हॉट बाथ क्या होता है। ओके, अब यहां से क्या होगा, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है ना, राइट। कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्या होगा, सरफेस के पास जाएंगे और सरफेस को एस्केप करने की कोशिश करेंगे। सरफेस के ऊपर क्या होता है, ऑन द सरफेस देयर एक नेट फोर्स होता है डाउनवर्ड, आप इसको कोहेसिव फोर्स कह सकते हो, फोर्स बिटवीन लाइक पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ओके, तो यहां से एस्केप करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एस्केप एनर्जी। पार्टिकल ने यहां से एनर्जी ली, हाई एनर्जी बना, हाई एनर्जी पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर जाके सरफेस पे पहुंचा, यदि इसके पास सरफेस पे आके एक्स्ट्रा एनर्जी यहां से एस्केप कर जाएगा तो वो कहां चले जाएंगे, वो वेपर की फॉर्म में यहां इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ आके वेपर की फॉर्म में इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैनोमीटर लगा दिया, ये क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो हाइट का डिफरेंस है यहाँ पे h, वो इसके वेपर प्रेशर को मेजर करेगा। क्या इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा पार्टिकल सरफेस से स्पेस करेंगे, ज्यादा पार्टिकल ऊपर वाले स्पेस में आएंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे एस्केप करेंगे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को 20 से 25 डिग्री ले लीजिए या 25 ले लीजिए। ओके, ठीक है, 273.16 जो कि 298 पॉइंट समथिंग। ओके, 25 डिग्री लगभग ऐड कर दीजिए 273 में, जिसको हम 0 केल्विन बोलते हैं, सॉरी 273 केल्विन बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 760 mm ऑफ मर्करी, ये प्रेशर है। ठीक है, और आइडियल बिहेवियर कब शो करती है गैस, आइडियल बिहेवियर क्या होता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। I'll be posting one more video today. There will be 2 more videos because this video becomes bigger. See you in the next video, part 3 of solutions. This is Neeraj Sharma for Education and Publish, working for science and maths and also learning science and maths. May God bless you.